تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی جانب سے مقدس سفر حج کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ حج کمیٹی صدر نشین مولانا سید غلام افضل بیابانی المعروف خسرو پاشا نے حج ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اہم تبدیلیوں اور شیڈول کا اعلان کیا۔ ارض مقدس کی حاضری کا شوق رکھنے والے عازمین حج کے لیے انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہونے جا رہی ہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے صدر نشین مولانا سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا نے آج یعنی ہفتے کو حج ہاؤس نامپلی میں ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ 4 مئی سے عازمین حج کی روانگی کا سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ اس سال مرکزی حج کمیٹی اور سعودی حکومت کی جانب سے کچھ اہم قوانین متعارف کروائے گئے ہیں۔ اس سال عازمین حج کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قیام کے دوران خود پکوان کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حج کمیٹی صدر نشین کے مطابق عازمین کو حکومت کی جانب سے منظور شدہ کیٹررز کی ایک فہرست فراہم کی جائے گی، جس میں سے وہ اپنی پسند اور سہولت کے مطابق انتخاب کر سکیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ انتظامی امور کو بہتر بنانے کے لیے اس مرتبہ خواتین اور مرد عازمین کے قیام کا انتظام علیحدہ عمارتوں میں کیا گیا ہے۔ مولانا خسرو پاشا نے کہا کہ ان کی یہ کوشش ہے کہ عازمین کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سعودی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے بہترین کیٹرنگ اور قیام کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ پریس کانفرنس کے دوران حج کمیٹی صدر نشین کے ہمراہ رکن حج کمیٹی محمد مجیب الدین، محمد لئیخ الدین، محمد اظہر کے علاوہ اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر عرفان شریف و دیگر موجود تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ حج کیمپ میں اب چہل پہل بڑھ گئی ہے۔ عازمین کی تربیت کا عمل بھی مکمل کیا جا چکا ہے۔ 4 مئی کو روانہ ہونے والے پہلے قافلے کے لیے حج ہاؤس میں تمام تر سہولیات مہیا کروائی گئی ہیں۔ رہی ہے جس کے اندر پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا اور کئی ایک سینئر صحافی آئے ہوئے ہیں۔ ان سب کو میں تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی سے کی طرف سے میں استقبال کرتا ہوں اور ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں ہیں۔ آج کا پریس کانفرنس کرنے کے 2-3 اہم مقاصد تھے۔ سب میں پہلے یہ کہ اس سال سعودی عرب نے کئی ایک قانونی کئی ایک ترمیمی لائی ہیں، کئی ایک چینجز لایا انہوں نے، اور سینٹرل حج کمیٹی کی طرف سے بھی کئی ایک چینجز ہے، اور گلف میں جو وار ہے اس کے تعلق سے بھی جو سوشل میڈیا پہ اور دوسرے جگہوں پر جو ہو رہا ہے، آپ حضرات کے مادھیم سے، آپ حضرات کے توسط سے ہمارے تمام عازمین حج کو تک یہ نیوز پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ جو نئے قوانین ہیں، جو نئے طریقے سے جو حج کروایا جا رہا ہے، یہ میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہمارا میسیج وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ تو سب میں پہلے میں سعودی گورنمنٹ کے تعلق سے کہوں گا کہ اس سال بہت اچھے انتظامات کی، کیونکہ دھوپ کی شدت وہاں پر ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کئی ایک ترمیمات کیے ہیں، جیسا کہ 3 بجے کے بعد باہر نکلنا، 12 سے 3 تک سب خیموں میں رہنا، اس قسم کی چیزیں تھیں۔ لیکن اس سال 2 بڑے چیزیں انہوں نے جو اسٹیپ لیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر سال عازمین یہاں سے جا کر کھا کے اپنا کھانا خود پکاتے تھے۔ اس سال سعودی نے کہا کہ گیس کی سپلائی نہیں ہوگی، کھانا نہیں پکے گا، جو بھی ہے آپ کو خرید کے کھانا ہے۔ اس کے لیے وہ لوگ نے 70-80 کیٹرنگس کے ریپیوٹیڈ جو کمپنیز ہیں سعودی کے، ان کے نام لیے ہیں، اور نہیں تو آپ خود جا کر ہوٹل سے خرید کے کھا سکتے ہیں۔ اور دوسری بڑی چینجز وہاں پر یہ ہے کہ ہر سال مردانہ اور زنانہ کو ایک ہی روم میں رکھا جاتا تھا۔ کئی ایسے واقعات دیکھنے میں ملے، 5-6 مرد ہیں، اس میں 2-3 خواتین ہیں، تو رات میں سوتے وقت میں وہ لوگ پردہ باندھ لیتے یا برقع پہن کے سویا کرتے تھے۔ وہ تمام چیزیں تھیں، وہ پہلویں تھیں، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی نے مرد حضرات کو الگ اور خواتین کو الگ رہنے کا انتظام کیا ہے۔ جو عزیز و قریب ہیں، میاں بیوی ہے یا ماں کے ساتھ بیٹا ہے، تو انہوں نے پروویژن رکھا ہے کہ آزو بازو کا کمرہ یا سامنے کا کمرہ رکھیں گے،
ख़वातीन जो भी हैं उनके सामने रहेंगे और वो उनके बाजू रहेंगे। तो ये दो बड़े चेंजेस हैं। दूसरी बात, सेंट्रल हज कमेटी ने इस साल उन्होंने एक स्मार्ट वॉच रखा है। गए साल कई हाजियों के बैगेज गुम हो गए थे, तो बैगेज को ट्रैक करने के लिए उन्होंने एक ट्रैकर भी दिया है और ऑलरेडी हमारे पास स्मार्ट वॉच की टीम यहाँ पर आ चुकी है। आज सुबह से हमने हज कमेटी के मेंबर्स और हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हमारे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स यानी खादिमुल हुज्जात जिनको हज इंस्पेक्टर कहा जा रहा है, उनको भी हमें अलर्ट करने की इजाज़त दी है। तो वो लोग यहाँ से जो प्लेन में जाएंगे फिर दोबारा वो हाजियों को यहाँ तक ला के छोड़ेंगे, वो जिम्मेदारी उनकी है। तो उनको किस किस्म से आज़मीन के साथ रहना है, उनको क्या करना है, कैसी खिदमत करनी है, यहाँ तक तो स्टेट हज कमेटी का काम है। इसके बाद जो वो रहेंगे तो हमारे हज इंस्पेक्टर्स रहेंगे जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, उनको टेस्ट लिया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई है, वो लोग साथ रहेंगे और हमारे हाजियों की नुमाइंदगी करेंगे। उनको जो भी वहाँ पर मसाइल आ रहे हैं उसको देखकर वहाँ पर मसाइल को हल करेंगे। और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के 2 कंट्रोल रूम रखा गया, एक यहाँ पर 24/7 कंट्रोल रूम रहेगा और जो तमाम हमारे खादिमुल हुज्जात जा रहे हैं वहाँ पर भी हमारे नोबल ऑफिसर रहेगा, वो उनको भी वहाँ पर भी वो लोग कंट्रोल करेंगे। ऐसी किसी की तबीयत ख़राब हो गई, कुछ हो गया तो करीब की जो डिस्पेंसरी है वहाँ पर ले जाके उनका इलाज कराएंगे। तशवीश की बात यह है कि इस साल गर्मी ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है, उसके लिए जो भी प्रिकॉशंस है, जो भी एहतियाती इक़दाम है वो हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। खास बात ये कि हज कमेटी के पास आके क्यों जाएं, डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अरे भाई, बोर्डिंग पास खुद हज कमेटी में रहता है, अगर उसके अंदर 10-12 चीज़ें हैं जो यहाँ पर दी जा रही। इस साल एक हज सुविधा ऐप उनको दिया जा रहा है, अडॉप्टर उनको दिया जा रहा है और एक ID कार्ड उनको यहाँ से दिया जाएगा। बैगेज के 2 टैग उनको लगाए जाएंगे, हैंड बैगेज का 1 टैग लगा जाएगा और उनको एकोमोडेशन का स्टिकर यहाँ पर चिपकाया जाएगा, फ़्लाइट टिकट यहाँ पर दिया जाएगा। और अब तक जो इंडिया से दूसरे स्टेट से जो आज़मीन गए हैं सऊदी अरब, वहाँ पर पकाने का इंतज़ाम नहीं है बोलने के बावजूद भी हमें सुनने में मिला है कि लोग इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे लेके गए हैं ताकि रूम में बैठकर छुप के पका लें। वैसी हरकत ना करें। उनके लिए 1 लाख यानी सऊदी गवर्नमेंट से फ़ाइन भी रखा गया है, जेल भी हो सकती है। इसलिए हम उनका जो यहाँ पर बैगेज आएगा और अंदर जाने हमेशा यहाँ पर सिर्फ स्क्रीनिंग होती थी। कभी भी कोई भी स्टेट हज कमेटी में इमिग्रेशन यहाँ नहीं होता था, वो एयरपोर्ट में होता। यहाँ सिर्फ स्क्रीनिंग होती थी, बैगेज को तोला जाता था। इस साल स्क्रीनिंग भी रेड अलर्ट है, सारे दुनिया में रेड अलर्ट चल रहा है। जैसा कि हर साल हमें मिनिस्टर साहब को, चेयरमैन साहब को अंदर जाकर प्लेन को झंडी बजाने की इजाज़त है, दिखाने की इजाज़त है। इस साल हमारे अंदर जाने की भी इजाज़त नहीं है। जहाँ तक आज़मीन जा सकते हैं वहीं तक हम आज़मीन को इमिग्रेशन होगा वहीं तक जाने का हमें परमिशन दिया गया है। तो हम यहाँ पर आज़मीन का सामान लेंगे, यहाँ पर वेट करेंगे। और जब वो डायरेक्ट वो सामान लेके चले गए, ऐसे चूल्हे या ऐसे गैर ज़रूरी चीज़ें उनके साथ रहे या उनका लगेज एक्स्ट्रा रहा तो वहाँ पर फेंक दिया जाता, बाहर उनके रिश्तेदारों को नहीं पहुँचाया जाता। तो तेलंगाना स्टेट हज कमेटी यहाँ पर वेट का इंतज़ाम की है, यहाँ से ट्रैवलिंग का इंतज़ाम करे हैं। उनके बैगेज को वेट किया जाएगा, उसके अंदर ऐसे चूल्हे, कुकर, पकाने की चीज़ें रहे तो यहाँ पर निकाल दिया जाएगा और यहाँ से उनको हम बसेस में बिठाकर एयरपोर्ट को भेजेंगे। एयरपोर्ट पे भी हमारे ऑफिसर्स रहेंगे, यहाँ पर भी हमारे ऑफिसर्स रहेंगे। यहाँ पर उनको स्मार्ट वॉच उनकी यहाँ पर चार्ज की जाएंगी। स्मार्ट वॉच जो टीम आई है वहाँ पर ये बताएंगे कि स्मार्ट वॉच किस तरीके से ऑपरेट की जाती है। आपका बैगेज उनको भी ट्रैक करते हैं, उनका बैगेज को भी ट्रैक करते हैं। और किसी लोगों को फ़ौरन चलाना नहीं आता तो हमारे जो हज इंस्पेक्टर्स हैं उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी भी उनकी क्लासेस जारी है और कल तक भी वहाँ बताया जाएगा। आज उनको स्मार्ट वॉच उनके हाथों पे लगा दी जाएंगी कि उसको किस तरीके से ऑपरेट किया जाए। तो बहरहाल तेलंगाना स्टेट हज कमेटी और तेलंगाना सरकार ख़ास तौर पर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत है कि जितने भी आदमी जा रहे हैं उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। हम 24/7 तमाम हमारे अरकान तेलंगाना हज कमेटी
हमारा स्टाफ और हम हुकूमत से ख्वाहिश करे हैं कि और एक 30-40 आदमी दूसरे डिपार्टमेंट्स के भी हमें दें ताकि हम ऑपरेशन सही तरीके से कर सकें, हमारा कंट्रोल रूम सही रह सके, जितने भी आदमी जा रहे हैं उनकी खिदमत सही तरीके से हो, उनको बेहतर से बेहतर खाना खिलाया जाए और उनको सुकून। और यहाँ पर कई लोगों को तलबिया पढ़ना, कई लोगों को एहराम बांधना नहीं आता, कई लोगों को नियत हज करना नहीं आता है, तो कई ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि मल्लेपल्ली की मस्जिद हो या बिनते हरम हो, ऐसे कई ख़वातीन आते हैं जो औरतों को एहराम बनते हैं और उनको नियत करवाते हैं और उनको तरीक़ा बताते हैं। और मल्लेपल्ली की मस्जिद और दावत इस्लामी कई लोग आते हैं जो मर्दाने को एहराम बनते हैं और उनको नियत कराकर यहाँ से भिजाते हैं। एक रूहानी मंजर रहेगा, कोई सोशल यानी क्या बोलते शोबतबाजी के लिए नहीं, कोई नया काम नहीं हो रहा है, जो बरसों से चला आ रहा है उसी को हम करने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तमाम सहाफ़ी ब्रदरों से ख्वाहिश करूँगा कि अल्लाह के मेहमान हैं, इनके साथ आप लोग भी जो है, आप लोगों की न्यूज़ से काफ़ी असर पड़ता है। हम जो एहतियाती तदाबीरें बता रहे हैं वो आवाम तक पहुँचे। अब छोटी मोटी तो तकलीफ़ होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गए साल बहुत अच्छा किया है, तकलीफ़ें कम हुई है और इस साल भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। जहाँ तक तेलंगाना स्टेट हज कमेटी का सवाल है, हमारे हाथ में जो कुछ है, हमारे हाथ में हमारे हज इंस्पेक्टर्स है, हमारा कंट्रोल रूम है, हम सेंट्रल हज कमेटी से बात कर सकते हैं और मौलिन से हम बात कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे आज़मीन को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, वो बखैर आफियत जाए और खैरियत से वापस आए, और कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर इंतज़ाम रहे। Germantown Super Speciality Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,